آپ کی زندگیوں میں ٹھہری رہے. آمین. میرا ایمان ہے کلام کی باتیں آج ایک دفعہ پھر سے ہمیں زندگی اور تازگی عنایت کریں گی. جب بھی ہم خداوند کے حضور میں جمع ہوتے ہیں تو خداوند ہماری زندگیوں میں نیا کام کرتا ہے، اس لیے کہ وہ زندہ ہے اور وہ اپنے لوگوں کی زندگی میں نئے کام کرنا چاہتا ہے. کمی اور کمزوری ہماری طرف سے کسی نہ کسی وجہ سے رہ جاتی ہے. سب سے پہلے اس سے پہلے کہ ہم کلام کی باتوں میں داخل ہوں، میں بہن ٹینا ہمارے درمیان ہے. بیٹی سارا جو ہے پہلی دفعہ، میرے خیال نہیں سارا پہلے آئی ہے، بہن ٹینا نہیں آ سکی جب سے اس جگہ کو ہم نے استعمال کرنا شروع کیا ہے. میں آپ کو خدا کے گھر میں خوش آمدید کہتا ہوں، مبارکباد پیش کرتا ہوں ہماری بیٹی علیشا کے ازدواج میں باندھے جانے کے لیے. سارے پروگرام میں خدا نے بڑی خوبصورتی کے ساتھ اپنی مدد کو بھیجا اور سارا انتظام جو ہے وہ ہوا ہے. خدا سے اس نئے جوڑے کو اور اس گھرانے کو جو نئے طور پہ بنا ہے بہت برکت دے. آمین. اس کے ساتھ ہی ہمارا دل جڑا رہتا ہے اسکاٹ لینڈ میں ہماری بزرگا کے ساتھ جو مشکل میں ہیں، تکلیف میں ہیں، اور ہم سب کا دھیان جو ہے وہ ادھر لگا رہتا ہے. دعائیں جاری رہتی ہیں ہماری انٹی ایلس اقبال کے لیے جب وہ کمزور ہیں، بیمار ہیں. ضرور ان کو دعاؤں میں یاد رکھیے کہ خداوند انہیں اٹھا کے کھڑا کرے ایک دفعہ پھر سے، تو بھی ہماری نہیں بلکہ اس کی مرضی پوری ہو. یہ مشکل بات ہے لیکن کلام یہی کہتا ہے. جب مسیح کے سامنے موت کھڑی ہے اور مسیح دعا کر رہے ہیں، جو کچھ مسیح نے زمین پہ کیا ہے نجات کے کام کے علاوہ، وہ سب کچھ اس لیے کیا ہے تاکہ ہم اسے فالو کر سکیں، وہ کر سکیں جو اس نے کیا ہے. کلام کی باتیں جو ہمارے سامنے ہیں، وہ آج جو بات میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں وہ ہے کہ ڈیوائن گفٹ جو خدا کا ہے، الہی تحفہ جو خدا کا ہے، وہ انسانیت کے لیے یا انسانوں کے لیے کیا ہے. آپ نے بہت دفعہ یہ باتیں پہلے بھی مختلف طور سے سنی ہوں گی، لیکن میرا ایمان ہے کہ آج کی شام خداوند مجھ سے بولا ہے، خدا آپ سے بھی بولے گا اور نئے طور سے کلام کی ان باتوں کو میرے اور آپ کے سامنے رکھے گا. مجھے اور آپ کو یہ بات یاد رکھنی ہے کہ جب ہم خداوند کے پاک کلام کی باتوں کو پڑھتے اور سیکھتے ہیں تو ہم نے ان کو اپنی زندگی کے اندر جگہ دینی ہے. اگر ہم انہیں اپنی زندگی میں جگہ نہیں دیتے، اپنی زندگی میں نہیں لیتے، تو پھر یہ باتیں جو ہیں یہ بے فائدہ ہو جاتی ہیں ہمارے لیے. یہ میڈیسین ہے، یہ دوائی ہے جو ہم روحانی بیماریوں سے علاج کے سلسلے میں کھاتے ہیں. اور اگر بیماری کے علاج کے لیے دوائی مل بھی جائے، ڈاکٹر کس قدر اچھا ہو، اس کی ٹریننگ کتنی بڑی ہو، ہاسپٹل کتنا نامور ہو، لیکن جو علاج اور معالجہ اس نے طے کیا ہے، جو میڈیسین اس نے دی ہے، جب تک وہ ہمارے بدنوں کا حصہ نہیں بنتی اس وقت تک ہماری کمزوریاں، بیماریاں، ہماری علالت جو ہے اس کا علاج نہیں کیا جا سکتا. اس لیے مجھے اور آپ کو خدا کے کلام کی یہ میڈیسین، یہ کلام کی باتیں ہم نے نہ صرف سننی ہے بلکہ انہیں ریسیو کرتے چلے جانا ہے. کب تک؟ قبر تک، موت تک. ہم نے جو کچھ بھی کلام میں پڑھا ہے، اگر وہ میں نہیں کر رہا تو مجھے اس کو کرنا شروع کر دینا چاہیے.
अगर मुझसे नहीं हो रहा तो मुझे दुआ शुरू कर देनी है, खुदावंद मैं ये बात जानता हूं कि ये मुझे करनी चाहिए, मुझे तौफीक बख्श के मैं ये करूं, और खुदा आपको ये ताकत देगा कि मैं और आप वो कर सकें। सो हमने इस दुनिया में रहना है, लेकिन इस दुनिया के होकर नहीं रहना। बाइबल मुकद्दस इस बारे में बड़ी क्लियर है कि मुझे और आपको इस दुनिया में भेजा गया है, हमने इस दुनिया में रहना है, लेकिन हमने इस दुनिया के होकर नहीं रहना। हम किसी और दुनिया से ताल्लुक रखते हैं। बाइबल मुकद्दस ये कहती है कि जमीन पे तुम परदेसी और मुसाफिर। क्या है हम जमीन पे? परदेसी, मुसाफिर, वक्ती हैं। अभी हमारे बच्चे, हमारी बहन बैठी हैं जो रिसेंटली गए इतने बड़े काम के लिए, सारे अजीज रिश्तेदार, मोहब्बत करने वाले, प्यार करने वाले, दिल के बहुत ही करीब जिंदगियां वहां मौजूद थी, लेकिन इसके बावजूद वो जानते थे कि हम यहां पे परदेसी हैं, मुसाफिर हैं। वो मुल्क हमारा है, हम वहां पैदा हुए हैं, लेकिन अब जाते हैं तो वो परदेसी और मुसाफिराना जो सोच और ख्याल है वो हमारे अंदर जारी रहता है। बेशक उनके साथ जो हमारा रिश्ता, राबता और प्यार है उसकी कोई मिसाल नहीं दी जा सकती यहां पे स्वीडन के अंदर, तो भी सो ये बात मुझे और आपको बाइबल मुकद्दस की समझना और भी आसान हो जाता है, क्योंकि हम इस सिचुएशन में हैं और हम इस सिचुएशन में रहते हैं। खुदा जब भी इंसान को देता है, जो कुछ खुदा से इलाका रखता है वो सब कुछ अबदी है, और जो इंसान से इलाका रखता है, जो इंसान की जिंदगी की चीजें हैं वो वक्ती हैं, वो फनी हैं। और खुदा ने इंसान को जो बेहतरीन शानदार तोहफा और गिफ्ट दिया है वो क्या है? शानदार गिफ्ट, शानदार तोहफा जो खुदा ने इस जमीन पे इंसान को दिया है वो खुदा की बादशाही की समझ और खुदा की बादशाही में आने, दाखिल हो जाने की मुफ्त दावत, बख्शिश है खुदा की, जो खुदा ने दी है। ये खुदा का बहुत बड़ा तोहफा है जो खुदा ने इंसान को दिया है। क्यों? क्योंकि इंसान की सबसे बड़ी जरूरत थी खुदा की बादशाही। खुदा की बादशाही के अलावा इंसान को और कुछ नहीं चाहिए। इंसान की जरूरत जो है वो खाना, पीना, पहनना नहीं है। इसलिए जिनको समझ आ गई उन्होंने दुनिया छोड़ दी, उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया और वो अलग हो गए और खुदा के हजूर में बैठ गए, क्योंकि वो जानते थे कि सबसे जरूरी बात खुदा और उसकी बादशाही है जिसको हमने ढूंढना है। इंसान की जरूरत जो है वो एक नई गवर्नमेंट है, एक नई सल्तनत इंसान की जरूरत है। इसलिए यशायाह नबी के सहीफे के 9 बाब की 6 आयत में क्या लिखा है? और हमारे लिए एक लड़का तवल्लद हुआ और हमें एक बेटा बख्शा गया, तो क्या होगा? सल्तनत उसके कंधे पर होगी। जब आसमान से जमीन का सफर किया है खुदा ने, जब आसमान से जमीन पे उतरा है खुदा, तो वो कुछ नहीं लेके आया, लेकिन अपने कंधों के ऊपर उठा के विजिबल तरीके से एक ही चीज लेके आया है जिसका वादा किया गया था, और वो था द न्यू गवर्नमेंट, नई सल्तनत। और कंधे पे क्यों उठाई है?
कंधे पे इसलिए उठाई है ताकि कोई उसको मिस ना कर दे। जब आप आते हैं तो अगर आपने कंधे के ऊपर कोई चीज रखी हुई है, उठाया हुआ है, तो आपको दोनों हाथों से सहारा देना पड़ेगा और वो चीज कोई मिस नहीं कर सकता। हमारे लिए एक लड़का तवल्लुद हुआ है, बेटा बख्शा गया है, खुदा आया है और वो नई सल्तनत लेके आया है। सल्तनत उसके कंधे पर होगी और वो अजीब मुशीर खुदाए कादर। कौन है वो? खुदाए कादर है, अबदियत का बाप है और सलामती का शहजादा है। उसकी सल्तनत की कुछ इंतहा ना होगी। इस सल्तनत में मुझे और आपको बुलाया है, इस सल्तनत में दावत दी है मुझे और आपको आने की, कि आ जाएं और इस सल्तनत को एंजॉय करें। आज मैं और आप अपनी अपनी गवर्नमेंट की बातें एकदम से मान लेते हैं। हम समझते हैं ये बातें बहुत जरूरी हैं, इनको मानना चाहिए। जरूर मानना चाहिए, जो बातें दुरुस्त है वो माननी चाहिए। लेकिन अगर यहां की गवर्नमेंट खुदा की गवर्नमेंट से उसका कोलिशन हो जाए, अगर वो उसके अगेंस्ट कोई बात कर दे, तो फिर उस गवर्नमेंट के खिलाफ खुदा के लोग खड़े हो जाते हैं। वो ये बताते हैं मैं रहता तो यहां हूं, लेकिन मैं असल में किसी और गवर्नमेंट और अथॉरिटी के नीचे मूव करता हूं। और ये बात जो आप कह रहे हैं, ये मेरी गवर्नमेंट से जो है वो ताल्लुक नहीं रखती। मेरी गवर्नमेंट इस बात की मुखालिफ है। मेरी गवर्नमेंट जो है, मेरी सल्तनत जहां का मैं शहरी हूं, जहां मैंने चले जाना है, मुझे उसकी इजाजत नहीं देती। और वो लोग अब बाइबल मुकद्दस में थ्रू आउट द बाइबल पढ़ते हैं, उसके लिए उन्हें उल्टी सलीबें चढ़नी पड़े, उन्हें तेल के कड़ाहों में डाला जाना हो, उनको आरों से चीरा जाना हो, शेरों के आगे डाला जाना हो, दरिंदों के आगे डाल दिया जाना हो, कुछ भी हो, वो अपनी सल्तनत जिसके वो शहरी हैं उसके साथ उनका रिश्ता और राबता जो है वो कायम रहता है। सो जमीनी सल्तनत की जितनी अच्छी बातें और चीजें हैं, हमने उन्हें नुकसान नहीं देना, लेकिन अगर वो हमें नुकसान पहुंचाना चाहते हैं हमारी रूह को, तो फिर हम उसके साथ एग्री नहीं कर सकते, फिर हम उसके साथ एक नहीं हो सकते। जमीन की सल्तनतें, जमीन की गवर्नमेंट्स वो फेल हो रही हैं, उनके अंदर लड़ाइयां हैं, झगड़े हैं, जंगें हैं, माली बदहाली है, मुश्किलात हैं, मुसीबतें हैं और तरह तरह की और चीजें हैं। लेकिन इनके दरमियान एक सल्तनत जो मेरी और आपके लिए खुदा ने बनाई है, खुदा की बादशाही, द किंगडम ऑफ गॉड, वो सल्तनत जो है मेरे और आपके दरमियान। इसलिए मसीह जब जमीन पे आया तो मसीह ने एक ही बात की मुनादी की है। आप कहेंगे और भी बहुत, नहीं 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 नहीं, थ्रू आउट द गॉस्पल जब आप पढ़ते हैं, उसमें से गुजरते हैं, एक ही बात की मुनादी की गई है। वो क्या है? द किंगडम ऑफ गॉड, दैट्स इट। इसके अलावा मसीह ने किसी चीज की मुनादी नहीं की। जब उन्होंने अपनी मुनादी का शुरू किया, मुकद्दस मत्ती के इंजील के 4 बाब की 17 आयत, तो उन्होंने कहा तौबा करो क्योंकि आसमान की बादशाही आ गई है। उर्दू में है नजदीक आ गई है, लेकिन इंग्लिश में है इट इज एट हैंड, इट इज हियर ऑलरेडी। आसमान की बादशाही आ गई है। और फिर उन्होंने अपने खिदमत का दौर गुजारा, और जब वो मुर्दों में से जी उठा, खुदा यीशु मसीह जब वो मुर्दों में से जी उठा, तो कलाम में क्या लिखा है? अमाल की किताब के पहले बाब की 3 आयत पढ़े आप। अमाल के किताब में अगर है बाइबल किसी के पास तो निकाल के पढ़े। जब वो जी उठा, तो जी उठने के बाद जो सब्जेक्ट था जिसकी उन्होंने मुनादी की पूरी अपनी खिदमत के दौरान, और कभी इधर उधर नहीं हुए, हर एक चीज का मकसद सिर्फ खुदा की बादशाही था। 3 पहले बाब की 3 आयत।
तो इसलिए वो फिर उसी के ऊपर फोकस किया उन्होंने। जी उठने के बाद अपने जलाली बदन में 40 दिन तक, पढ़िए। उसने दुख सहने के बाद बहुत से सबूतों से अपने आप को उन पर जिंदा जाहिर भी किया, चनाचे वो 40 दिन तक उन्हें नजर आता और खुदा की बादशाही की बातें कहता रहा। वो 40 दिन तक उन्हें मुफ्ती सबूत मुहैया करता रहा कि वो जिंदा हो गया है, और वो उनके साथ मिलता रहा। और एक सब्जेक्ट जिसके ऊपर उन्होंने बात की जिंदा होने के बाद, वो कौन सा है? खुदा की बादशाही की बातें उनसे कहता रहा, ताकि जब अब ये निकलेंगे मुनादी करने के लिए, ये कहीं इधर उधर ना हो जाए, कोई अपनी चीजें ना घड़ ले, कोई अपनी चीजें ना इजाद कर ले, कोई अपनी सी बातें ना कहना शुरू कर दे, बल्कि इनका सब्जेक्ट एक हो, और वो हो खुदा की बादशाही की बात की जाए। और मसीह जो है इसी की मुनादी करने के लिए आए, क्योंकि जो खुदा की बादशाही है, याद रखें, ये सबसे स्टेबल, सबसे मुतवाज़न किंगडम है। जो खुदा की बादशाही है, इसको जिंदगी में, दुनिया में, जमीन में, कायनात में कोई थ्रेट नहीं कर सकता खुदा की बादशाही को। ये इतनी स्टेबल है खुदा की बादशाही। खुदा यीशु मसीह जब इस दुनिया में आए हैं, बादशाह है, बादशाही को कंधों पे लेके आए, और जब वो बादशाह है, बादशाही को लेके आए हैं बहैसियत इंसान, वो खुदा की बादशाही में पैविस्ता है, गड़े हुए हैं। इसलिए कोई चीज उनको थ्रेट नहीं कर सकती। खुदा की बादशाही की बात। आप मेहरबानी से ये छोड़ दें, बाद में हम देखेंगे, ताकि ये थोड़ा सा वक्त और 20-25 मिनट जो है हम तसल्ली से कलाम की बातों को देख सकें। आए बैठें, कलाम की बातों को सुनिए, वरना मैं सोचता हूँ आइंदा हम ये चाय वाय बंद कर देंगे अगर कलाम के दरमियान ये किया जाएगा, क्योंकि ये ठीक नहीं है। खुदा यीशु मसीह जो है बहैसियत इंसान, वो खुदा की बादशाही में पैविस्ता है, जिसको थ्रेट नहीं किया जा सकता। खुदा यीशु मसीह की मुलाकात पैंतुस पिलातुस से हुई है। वो बादशाह है, हाकिम है, हुक्मरान है, और कलाम में लिखा है कि खुदा यीशु मसीह को उसने थ्रेट किया। उसने कहा, क्या तू नहीं जानता कि मैं तुझे मौत भी दे सकता हूं, मैं तुझे जिंदगी भी दे सकता हूं? और खुदावंद से उसने पूछा, क्या तू बादशाह है? उसने कहा, हाँ मैं बादशाह हूं, हाँ मेरी गवर्नमेंट है, मेरी सल्तनत है, पर इस दुनिया की नहीं है। मैं किसी और सल्तनत का, किसी और किंगडम का मालिक हूं, मैं किसी और सल्तनत का बादशाह। उसने कहा, क्या तू नहीं जानता मैं तुझे जिंदगी और मौत दे सकता हूं? उसने कहा कि जो मेरी सल्तनत है, जो खुदा की बादशाही है, वो तेरी सल्तनत को कंट्रोल करती है। उसने कहा, अगर तुझे मेरी बादशाही से ना दिया जाता तो तेरा मुझ पे कोई इख्तियार ना होता। ये आयत है। क्यों? क्योंकि जो मेरी किंगडम है वो तेरी किंगडम को कंट्रोल करती है। जो मेरी बादशाही है वो तुझे, तू बादशाह है यहां पे, तुझे भी कंट्रोल करती है। अगर तुझे मेरी बादशाही से अलाउ ना किया जाता कि तू मसीह को पकड़े और उसकी जजमेंट करे बाकी सारे इंसानों के बिहाफ पे, तो तू कभी ना कर सकता। तू कर रहा है तो तू समझता है ये तू कर रहा है, मैंने तुझे अलाउ किया है कि तू करे। अगर मैं तुझे अलाउ ना करता, क्योंकि मेरी किंगडम तेरी किंगडम से बड़ी है, मेरी किंगडम नजर नहीं आती लेकिन तेरी नजर आने वाली किंगडम को कंट्रोल करती है। इस किंगडम में आपको और मुझे बुलाया गया है। इस किंगडम में मैं और आप जो है वो मदाओ किए गए हैं, दावत दी गई है हमें। इस किंगडम के मालिक हैं हम, इस किंगडम को हमने फैलाना है। मालिक तो खुदा है,
लेकिन आप भी जब चलते हैं तो आप उस किंगडम के बिहाफ के ऊपर जो है वो खुदा के काम को करते चले जाते हैं। लेकिन मैंने और आपने, हम सब ने मिलके, इसका ताल्लुक सिर्फ मसीहों से नहीं है, पूरी दुनिया के इंसानों ने, याद रखना है, हमने हर एक इंसान मसीह खुदा की छवि पे बनाया गया है, चाहे वो कोई भी मजहब का हो। लेकिन खुदा का कभी इरादा नहीं था मजहब का, मजहब हमने बना लिए हैं, दिन हमने चुन लिए हैं, हमने खुदा को दिनों में कैद कर दिया है। अगर कोई यहूदी है तो उसका खुदा सैबत गॉड है, अगर कोई क्रिश्चियन है उसका खुदा संडे गॉड है, अगर कोई मुसलमान है उसका खुदा फ्राइडे गॉड है। वो संडे को, सैटरडे को, फ्राइडे को 2-3 घंटे के लिए आते हैं, वो समझते हैं हम खुदा के, और उसके बाद पूरा हफ्ता उनकी जिंदगी से, उनकी बातों से, उनके खाने से, उनके पीने से, उनके बोलने से कभी खुदा का जलाल जाहिर नहीं होता। वो अपने आप से खुद ही शर्मिंदा होते रहते हैं, जो जानते हैं कि ये गलत है। वो क्या सुनते हैं, क्या देखते हैं, क्या बोलते हैं, क्या करते हैं, क्योंकि वो मजहब का हिस्सा बन गए हैं। उन्होंने अपना ताल्लुक खुदा की बादशाही से डिटैच कर लिया है, या वो कभी अटैच ही नहीं हुए खुदा की किंगडम के साथ। खुदा की बादशाही जो है वो दिनों पे मुहित नहीं है। हम एक दिन बैठ के इकट्ठे दुआ इबादत करते हैं, दैट्स इट। ये तो स्टार्टर है जो दिया जाता है ताकि पूरा हफ्ता आप इस पे काम करें, इन बातों में पूरा हफ्ता गौर और खौस करें कि ये क्या बातें हैं जो मेरे और आपके सामने हैं। खुदा की बादशाही सोमवार से संडे तक काम करती है, वो 24/7 इफेक्टिव है। वो मेरी जिंदगी में, मेरी शादी में, मेरे बच्चों में, मेरे काम में, मेरी जिंदगी के हर एक एरिया के अंदर इफेक्टिव है। वो सिर्फ चंद वक्त और थोड़ी देर के लिए नहीं है। वो इसलिए नहीं है कि जब मुझे जरूरत पड़े मैं उसको ले लूं और उसके बाद मैं उसको भूल जाऊं। नहीं 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 नहीं, आपने और मैंने, खुदा ने हमें बुलाया है, हम किंगडम लिविंग के लिए बुलाए गए हैं। हम खुदा की बादशाही में रहने और उसमें जीने के लिए बुलाए गए हैं, चाहे हम जितने भी हों। मैं और आप थोड़े हैं यहां पे, लेकिन जो खुदा के लोग पूरी जमीन पे हैं, हम उसका हिस्सा हैं। खुदा के लोग जो पूरे स्टॉकहोम के अंदर हैं। आप जानते हैं कि आसमान पे चर्चों के नाम नहीं होंगे। जब खुदा आसमान से देखता है तो वो चर्च नहीं देखता, उसके नाम नहीं देखता, वो शहर देखता है। क्या देखता है जी? शहर देखता है। बाइबल मुकद्दस में जब आप पढ़ते हैं नया नामे में, आपको किसी चर्च का नाम नजर नहीं आता, आपको शहरों के नाम नजर आते हैं। रोमियों की कलीसिया, करंथियों की कलीसिया, इफिसियों की कलीसिया, गलतियों की, ये सारे शहर हैं। इनमें से कोई चर्च नहीं है जो हम बनाते हैं। ये इंतजामी बात है, सिर्फ रजिस्ट्रेशन के लिए, गवर्नमेंट को बताने के लिए, एंड दैट्स इट। खुदा जब ऊपर से देखता है तो आप याद रखें, आप जो है वो चर्च ऑफ गॉड फर्स्ट बॉर्न नहीं है, आप चर्च ऑफ स्टॉकहोम है। खुदा कभी इन नामों को नहीं जानता, खुदा शहर को जानता है। शहर के एतबार से आपका नाम आसमान पे रजिस्टर्ड है। पूरे स्टॉकहोम के अंदर जितने भी खुदा का काम कर रहे और खुदा के इरादे के मुताबिक कोशिश कर रहे हैं, वो आसमानी कलीसिया का हिस्सा है। और हमने ये कोशिश करनी है इंडिविजुअली और मिलके हम उसका हिस्सा बन सके। ये ना हो कि हम सब कुछ करके जाएं, हम कहे तेरे नाम से हमने ये भी किया, वो भी किया, और खुदा कहे कि मैं तुम्हें नहीं जानता। इट विल बी टेरेबल। सो जब मैं और आप खुदा की बादशाही के अंदर हैं, तो इसका मतलब ये है कि हम किसी और गवर्नमेंट के नीचे जो है, किसी और गवर्नमेंट की जिंदगी जो है वो हम गुजार रहे हैं।
خدا کی بادشاہی کے لیے خدا یسوع مسیح نے کیا کہا تھا نیکودیمس کو؟ تجھے نئے سرے سے پیدا ہونا ضروری ہے۔ یہ نئے سرے سے پیدا ہونے کا کیا مطلب ہے؟ یہ خدا کی بادشاہی جو ہے نا، یہ کوئی ریلیجس ایکسپیرینس نہیں ہے، اٹس اے نیشنل ایکسپیرینس۔ یہ جو ہے یہ نیشنلٹی کا ایکسپیرینس ہے۔ آپ جانتے ہیں نا کہ جو امریکہ میں جو بھی پیدا ہو جاتا ہے اس کو نیشنلٹی دے دی جاتی ہے۔ امریکہ میں یہ قانون ابھی وہ اس پہ غور و خوض کر رہے ہیں۔ تو جب آپ کسی ملک میں پیدا ہو جاتے ہیں تو آپ کو نیشنلٹی مل جاتی ہے۔ تو بائبل مقدس کی یہ جو جگہ ہے نا، جس کو آپ خدا کی بادشاہی کہتے ہیں، یہ خدا نے کہا کہ یہ جو ہے نیشنلٹی کا ایکسپیرینس ہے، شہریت کا ایکسپیرینس ہے۔ اور میں اور آپ جو ہیں، خدا نے ہمیں بلایا ہے کہ ہم اس میں پیدا ہوں، اور جب ہم پیدا ہوں گے تو آٹومیٹیکلی جتنی بھی اس کی مراعات ہیں، جتنی بھی اس کی اپرچونٹیز ہیں، وہ آٹومیٹیکلی مجھے مل جائیں گی۔ اگر کوئی سویڈش شہری ہے، سویڈن کا رہنے والا ہے، تو سویڈن سے یہ نہیں پوچھتا آپ نے رات کو یہ کیا تھا، صبح کو وہ کر دیا تھا، تو آپ کو یہ دینا ہے کہ نہیں۔ نو نو نو، آپ جائیں آفیسز کے اندر، جو آپ کے کام ہے ہو جائیں گے، کیونکہ آپ سویڈش نیشنل ہیں۔ اس لیے خداوند نے اسے کہا کہ تجھے نئے سرے سے پیدا ہونا ضروری ہے، تجھے بادشاہی کو لینا ہے، تجھے کنگڈم کے اندر نئے طور پہ پیدا ہونا ہے، تجھے نیشنل ایکسپیرینس کرنا ہے، تجھے یہاں کی نیشنلٹی لینی ہے، تجھے یہاں کی شہریت لینی ہے، نئے سرے سے رینیو ہونا ہے۔ اپنے مائنڈ کو، اپنے دماغ کو مجھے اور آپ نے، میں نے اور آپ نے تبدیل کرنا ہے، چینج کرنا ہے۔ مذہب جو ہے کوئی بھی ہو دنیا کا، وہ مجھے اور آپ کو ایک اچھی تدفین دے سکتا ہے، ایک خوبصورت فیونرل دے سکتا ہے، خوبصورت جنازہ دے سکتا ہے، لیکن جو خدا کی بادشاہی ہے وہ آپ کو ریزوریکشن کی گارنٹی دیتی ہے، وہ آپ کو جی اٹھنے کی گارنٹی دیتی ہے۔ وہ کہتی ہے کہ جیسے مسیح جی اٹھا ویسے ہی میں اور آپ جی اٹھیں گے، اور خدا کے حضور میں اب تک زندہ رہیں گے، اور پھر نہ وہ آنسو ہوگا وہاں پہ، نہ دکھ، نہ تکلیف، نہ مصیبت، نہ بیماری، کچھ وہاں نہیں ہوگا۔ یہ گارنٹی خدا کی بادشاہی دیتی ہے، مذہب نہیں دیتا۔ مذہب رستے بتاتا ہے، یہ کر لو وہ کر لو، ایک ہی بات ہے، چند ایک باتوں میں سے، اور وہ یہ ہے کہ ہم نے اپنی زندگی خدا کو دینی ہے، بائبل مقدس کو پڑھنا ہے، اور بائبل مقدس میں جو کچھ بھی نظر آئے کہ یہ مجھے کرنا چاہیے، وہ ہمیں کرتے چلے جانا ہے، وہ کچھ بھی ہو، پھر وہ مجھے پسند ہو یا نہ ہو، مجھے اچھا لگے یا نہ لگے۔ نیکودیمس آیا، وہ ایک سینیگوگ کا سردار تھا، پاسٹر تھا، مسیح نے اس سے بات چیت کی، تھک گیا تھا وہاں کی چیزیں کر کر کے جو وہ کر رہے تھے، یہودی ریچولز جو تھیں، اس نے بار بار مسیح کو خدا کی منادی کرتے سنا۔ آ گیا مسیح کے پاس، کہتا میں تھک گیا، مجھے بتا کہ میں بادشاہی میں کیسے داخل ہو سکتا ہوں۔ مسیح نے کہا کہ نئے سرے سے پیدا ہونا، جب تجھے نیشنل ایکسپیرینس ہو جائے گا، نیشنلٹی مل جائے گی، تو پھر تو وہاں کا ہے، پھر کوئی فکر کی بات نہیں ہے۔ یہ باتیں اور لوگ تو شاید نہ سمجھیں، لیکن جو سویڈن میں دوسرے ملکوں سے ہم جیسے آئے ہوئے لوگ ہیں، ہم اسے بہت اچھی طرح سمجھتے ہیں۔ ہم نیشنلٹی لینے کے لیے اس ملک کی کس طرح سے تڑپتے تھے، کس طرح سے ہم نے اس کے لیے کوشش کی ہے کہ ہمیں کسی طرح اس اچھے ملک کی نیشنلٹی مل جائے۔ اور مسیح نے کہا کہ یہ جو خدا کی بادشاہی ہے، جس کا میں تم سے وعدہ کر رہا ہوں، عالم ارواح کے دروازے اس پہ غالب نہیں آ سکتے، موت کے دروازوں اور موت کے پھاٹک جو ہیں وہ بھی اس پہ غالب نہیں آ سکتے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ میں موت کا بھی
मालिक हूं, मैं जिंदगी का भी मालिक हूं, मौत के बाद भी मेरी हुकूमत चलती है। ये वो बादशाही है, चाहे मैं मौत तक पहुंच जाऊं, चाहे मैं कब्रिस्तान तक पहुंच जाऊं, वहां भी मसीह मेरा बादशाह है, वहां भी खुदा की बादशाही अफेक्टिव है, काम करती है। क्योंकि मौत और आलमे अरवाह जो है वो भी खुदा की बादशाही पे गालिब नहीं आ सकते। अगर मत्ती के इंजील के 22 बाब की 32 आयत आप पढ़े तो वहां पे लिखा है कि खुदा यीशु ने कहा कि खुदा ने कहा मैं इब्राहिम का और इसहाक का और याकूब का खुदा हूं। और क्या जब मैं कहता हूं मैं मौत तक पहुंच जाऊं, कब्रिस्तान तक पहुंच जाऊं, तो खुदा फिर भी मेरा खुदा है। तो क्या खुदा मेरे मरने के बाद मुर्दा बोइस का खुदा है? नहीं, बल्कि खुदा ने कहा कि इब्राहिम तुम्हारे लिए मुर्दा है, लेकिन इब्राहिम मेरे पास आज भी जिंदा है आसमान पे। इसहाक तुम्हारे लिए मुर्दा है, लेकिन इसहाक आज भी जिंदा है मेरे पास। याकूब तुम्हारे लिए मुर्दा है, लेकिन याकूब मेरे पर चलता फिरता प्रस्तिश करता है। इसलिए मैंने कहा है कि मैं इब्राहिम, इसहाक और याकूब का खुदा हूं। आपके प्यारे, आपका बाप, आपकी माँ, मेरी माँ, मेरा बाप जो मर गए हैं, अगर वो खुदावन में मरे हैं, बादशाही में मरे हैं, तो वो आज भी जिंदा है। इसलिए खुदा उनका खुदा है, इसलिए मसीह उनका मसीह है, क्योंकि मसीह और खुदा की बादशाही कब्र से इधर भी काम करती है और कब्र के इधर भी काम करती है। वो दोनों तरफ मूव करती है, काम करती है। इसलिए मौत जो है वो इस किंगडम को, इस बादशाही को रोक नहीं सकती। मौत इस किंगडम को जो है किसी भी तौर से अफेक्टिव होने से जो है वो हिंडर पैदा नहीं कर सकती। इसलिए मसीह जब आया तो मसीह ने लूका 4 बाब की 43 आयत में मसीह ने कहा कि मैंने और भी लोगों को जाके खुदा की बादशाही की खबर देनी है। फिर लूका 12 बाब और उसकी 32 आयत अगर पढ़ दें आप में से कोई, लूका 12 बाब और उसकी 32 आयत में खुदा यीशु मसीह जो है वो मेरे साथ और आपके साथ बात कर, ऊंची आवाज में पढ़िएगा। लूका 12 बाब है और उसकी 32 आयत है। आए छोटे गले ना डर, क्योंकि तुम्हारे बाप को पसंद आया कि तुम्हें बादशाही दे। अपना माल असबाब बेचकर खराब कर दो और अपने लिए ऐसे पटवे बनाओ जो पुराने नहीं होते, यानी आसमान पर ऐसा खजाना जो खाली नहीं होता। आमीन आमीन। सो 32 आयत जो है वो ये क्या कह रही है कि हमने डरना नहीं है, खौफजदा नहीं होना, क्योंकि बाप को पसंद आया है कि वो तुम्हें बादशाही अनायत करे। सो मुझे और आपको खुदा ने बादशाही दे दी है ऑलरेडी। हमें बादशाही ऑलरेडी दे दी गई है, सिर्फ मुझे और आपको नहीं, सब इंसानों के लिए, चाहे वो किसी भी कौम, कबीले, मजहब, उम्मत के हों, उनके लिए बादशाही को अवेलेबल कर दिया गया है। सिर्फ उन्होंने रिसीव करना है, मुफ्त है, बख्शिश है ये। उसके लिए उन्होंने कुछ नहीं करना, सिर्फ उस पे ईमान लेके आना है। और इसलिए खुदा ने कहा है छोटे गले मत डर। चंद एक जाने उसके सामने बैठी हुई थी 12, वो उनको कह रहा है तुमने डरना नहीं है, खुदा की बादशाही के लोग हैं ये। अगर मैं और आप खुदा की बादशाही के हैं तो फिर हमारे अंदर खौफ नहीं होगा, और अगर हमारे अंदर खौफ है तो इसका मतलब अभी खुदा की बादशाही में हम दाखिल ही नहीं हुए, क्योंकि खुदा ने कहा है कि मुझे और आपको खौफ नहीं करना है, मुझे और आपको डरना नहीं है। ये मजहब के लोगों का काम है, वो बहुत सी चीजों में पढ़ के डरते रहते हैं, लेकिन हमने डरना नहीं है। हमने खुदा के नाम को इज्जत और जलाल देनी है। और ये हवाला जो आज पढ़ा गया है मुकद्दस मत्ती के इंजील के 13 बाब की 44, 46 और 47 आयत में 2 वाकयात, एक एक 2-2 लाइन के खुदावन ने कहे,
आसमान की बादशाही के बारे में। ये पूरा बाब ही जो है, इसमें आसमान की बादशाही की तमासील खुदा यीशु मसीह ने 7 तमासील इसमें कही। और खुदा यीशु मसीह ने इन 2 जगह पे बताया कि एक शख्स था, उसको खेत में खजाना मिल गया। दूसरा शख्स था, वो सौदागर था, और वो जो सौदागर था, मर्चेंट था, उसको एक कीमती मोती मिल गया। और इनको जब ये मिल गया तो कलाम में लिखा है कि इन्होंने जाके अपना सब कुछ बेच दिया। They kept nothing। किसी चीज को इन्होंने होल्ड बैक नहीं किया, हर एक चीज बेच दी, सब कुछ दांव पे लगा दिया। क्यों? क्योंकि इनको खुदा की बादशाही मिल गई है। जिसको खुदा की बादशाही मिल जाती है, वो अपना सब कुछ दांव पे लगा सकता है, वो अपना सब कुछ बेच सकता है, वो अपना सब कुछ छोड़ सकता है। खुदा यीशु ने कहा कि वो क्या क्या छोड़ सकता है? वो अपने बाप को, अपनी मां को, अपनी बीवी को, अपने खामंद को, अपने बच्चों को, अपनी बहनों को, अपने भाइयों को, यहां तक कि वो अपनी जान से दुश्मनी कर सकता है। ये लेवल है आसमान की बादशाही का, अगर समझ आ जाए तो, वरना नहीं। इसलिए मसीह ने कहा था मेरे पास बादशाही है, मेरे पीछे आना, बादशाही लेनी है, वो मुफ्त है, ले सकते हो आप। लेकिन दुश्मनी कैसे है? लेवल क्या है? जो कि अपने माँ बाप, बहन भाई, बीवी, बच्चों से ज्यादा इसको नहीं चाहता। वो मेरा शागिर्द होने के, मेरी बादशाही में आने के लायक नहीं है, पॉसिबल नहीं है। फिर जिसको बादशाही की समझ आ गई, उसने सब कुछ दांव पे लगा दिया। हम इस दुनिया के लिए, ये स्वीडन की, यूरोप की जो नेशनलिटी है, क्या हैसियत है इसकी, लेकिन हम जानते हैं दुनिया में इसकी बड़ी हैसियत है। हमारे दरमियान एक नौजवान का, आप जानते हैं, शाहिद को, और इस जैसे और कितने नौजवान हैं, औरतें हैं, मर्द हैं, जो यूरोप की नेशनलिटी हासिल करने के लिए, इस मुल्क तक पहुंचने के लिए अपनी जान दांव पे लगा देते हैं। ना सिर्फ वो अपना बाप छोड़ के आते हैं, मां छोड़ के आते हैं, हम यहां पे आए हुए लोग को जानते हैं, उन्होंने अपनी बीवियां छोड़ी, अपने बच्चे छोड़े, अपने बहने भाई छोड़े, अपनी जान दांव पे लगाई, बोटों में, पानियों में, जंगलों में से होके गुजरे, और उन्होंने कहा कि बहुत से लोग मर भी गए, जान दांव पे लगा दी कि यूरोप की नेशनलिटी हासिल कर लें। और मसीह ने कहा है कि आसमान की बादशाही अगर लेनी है तो जान का भी नजराना देना पड़ सकता है। छोड़ने की बात है, लेकिन अगर हमें समझ लग जाए तो, क्योंकि जिसको ये मिला है, उस सौदागर को कीमती मोती मिल गया है, उस शख्स को खेत में खजाना मिल गया है, उसने कहो इतनी कीमती चीज, इतनी जोरावर चीज, और फिर जिसको ये बादशाही मिल जाती है वो उसके अंदर आ जाता है। फिर उसकी कोशिश क्या होती है जब हम पहुंचते हैं, मेरी बीवी आ जाए, मेरे बच्चे भी यहां आ जाए, मेरी मां भी आ जाए, मेरा बाप भी आ जाए, मेरे बहन भाई भी आ जाए, सब यहां पे आ जाए। क्यों? क्योंकि ये बादशाही, ये किंगडम, यहां की चीजें कमाल। जब हम जाते हैं उन मुल्कों में, हम इन मुल्कों की बातें बताते हैं, इस जगह की बातें बताते हैं, और जिसको खुदा की बादशाही की समझ आ जाती है, फिर वो जहां जाता है, फिर इस बादशाही, जो आसमान की बादशाही, इसकी बातें बताता है। कहता आसमान की बादशाही, आप आ तो नहीं रहे, आपको समझ तो नहीं आ रही, लेकिन मामा पापा जो भी रिश्ता है, दोस्त है, अजीज है, आपको कोशिश करते हैं कि आप समझते नहीं, आप जानते नहीं। ओ आसमान की बादशाही का जिसको रेवलेशन मिल जाए, फिर छोड़ना, वो तो अपने दम छोड़ देते हैं। जमीन पे हम देख रहे हैं लोग अपनी जानें दांव पे लगा के इन बादशाहियों को ले रहे हैं, और आसमान की बादशाही की बात की जा रही है, क्योंकि वो जानते हैं, वो सौदागर जानता था,
वो जिसको खेत में खजाना मिला वो जानता था, वो जानता था कि मैं अपना सब कुछ बेच दूंगा तो जो कुछ मैं बेचूंगा, अगर ये खेत मुझे मिल गया, अगर ये मोती मुझे मिल गया, तो जो मैं छोड़ूंगा बेचूंगा वो सब कुछ इसमें ऑलरेडी इंक्लूडेड है। आपको 30 गुना, 60 गुना और 100 गुना फल मिलता है, मिनिमम 30 गुना। आपको गाड़ी बेचनी पड़े, घर बेचना पड़े, जिंदगी देनी पड़े, बैंक बैलेंस कुछ भी करना पड़े, वो आपको कितने गुना मल्टीप्लाई होकर मिल सकता है। अगर ये खेत मिल गया, ये मोती मिल गया, 30 टाइम मिनिमम। सो इसलिए उससे खुदा यीशु मसीह ने ये तमसील कही कि उन्होंने अपना सब कुछ ही बेच दिया, रखा ही कुछ नहीं। सो अगर आप बादशाही ढूंढ रहे हैं, खुदा की बादशाही के मुतलाशी हैं, तो आप मुबारक लोग हैं। बादशाही ऑलरेडी आ चुकी है, बादशाही ऑलरेडी मसीह ने कहा यहां मौजूद है। उसकी मुनादी की और उसकी खबर दी और वो चले गए। और अब मुझे और आपको दावत है कि हम भी आए और हम दूसरों को, रूहों को जीते। हमने जब खुदा के हुजूर में जाना है तो हमने अपनी जाती चीजें नहीं मांगी। मेरी दुआ जो है वो मेरी प्राइवेट जरूरतें नहीं सिर्फ होनी चाहिए। कभी कभी मैं बहुत कम वैसे मांगता हूं। आपको मांगने की, दुआ करने की प्रिविलेज इसलिए दी गई है, ज़बूर 2 उसकी 7 आयत पढ़े, आपको इसलिए खुदा ने मांगने की प्रिविलेज दी है ताकि आप उम्मतों को मांगे, आप कौमों को मांगे मिरास के लिए, आप शहरों को मांगे, आप रूहों को मांगे। इसके लिए हमने दुआ करनी है। हमें तो अपनी चीजों से फुर्सत नहीं मिलती, मांगे वो भी, लेकिन लास्ट में सबसे पहले ये मांगे, ईमानदार बनना है। और ईमानदार क्या करते हैं? उनकी दुआ के असर से क्या होता है? शहर सरफराजी पाते हैं, रूहें निजात पाती हैं। ये मांगने के लिए खुदा ने हमें बुलाया है। तो फिर बाकी ये रोटी, कपड़ा, मकान, खाना पीना, ये मत्ती 6 बाब पढ़े। मसीह ने कहा कि तुम इस बात की फिक्र ना करो कि क्या खाओगे, क्या पियोगे, क्या पहनोगे। तो मेरे और आपके जैसे होते तो पूछते कि खुदा में यीशु मसीह, ये तुम्हारी बेसिक जरूरत है, हमारी औलाद की, हमारे घराने। तो फिर खुदा ने क्या, क्योंकि तुम्हारा बाप ऑलरेडी इन चीजों को जानता है, ये सब कुछ ऑलरेडी तुम्हें दे दिया गया है। इसकी फिक्र नहीं करनी तुमने। क्यों नहीं करनी? क्योंकि ये ऑलरेडी तुम्हें दे दिया गया है। और फिर अगर दे दिया गया है, मुझे तो नहीं मिला, तो फिर मैं क्या करूं, क्या दुआ करूं? फिर मैंने और आपने ये दुआ करनी है, आपने और मैंने इन चीजों के लिए इस तरह दुआ करनी है गोया वो आपको मिल गई है, हाला मिली नहीं है। आपने खुदा के हुजूर में जाना है, शुक्रगुजारी करनी है। खुदावंद, मैं तेरा शुक्र करता हूं, तूने मुझे ऑलरेडी शिफा दे दी है, तूने ऑलरेडी मुझे घर दे दिया है, तूने ऑलरेडी गाड़ी दे दी है, तूने ऑलरेडी लाइसेंस दे दिया है। ये जो चीजें हैं ये दे दी गई है। खुदा ने कहा तुम्हारा बाप तुम्हारे मांगने से पहले इन चीजों के बारे में जानता है, वो तुम्हारे लिए ऑलरेडी डिलीवर कर दी गई है, वो ऑलरेडी दे दी गई है। जस्ट थैंक यू। मांगना छोड़े, शुक्र करना शुरू करें। जब आप शुक्र करना शुरू करेंगे, इसी को ईमान कहते हैं। इब्राहिम के बारे में क्या लिखा है? खुदा ने उसके साथ वादा किया और उसने यकीन कर लिया और ये बात उसके लिए रास्तबाजी गिन ली गई और वो ईमानदारों का बाप कहलाया। जो कुछ आपको चाहिए, जो कुछ जिस्मानी जरूरत है, जो आपके घराने की जरूरत है, वो ऑलरेडी आपके लिए गारंटीड है। उसके लिए शुक्र करना शुरू करें। ये ना कहे खुदावंद कर, कहे खुदावंद तूने ऑलरेडी कर दिया है, मुझे बस नजर नहीं आ रहा। मैं उसके लिए भी तेरा शुक्र करता हूं, मैं उसके लिए भी तेरी सिताइश करता हूं। यही फेथ है। दिस इज कॉल्ड फेथ। मांगना नहीं है, क्योंकि ये चीजें आपके बाप के बारे में क्या लिखा है? पढ़े 6 बाब को, उसको 26-27 से पढ़ना शुरू करें 33 वर्ष तक।
इन चीजों को नहीं मांगना, तो फिर क्या मांगना है, क्या तलाश करना है? इन चीजों को नहीं, खुदा ने कहा पहले उसकी बादशाही की तलाश करो। तो ये सारी चीजें ऑलरेडी दे दी गई हैं, ये उस पैकेज के अंदर है, ये उस पैकेज से बाहर नहीं है। हम उस पैकेज को लेते नहीं है और इन चीजों को ढूंढते रहते हैं। जब हम इन चीजों को ढूंढेंगे, जब आप खुदा के प्लान में जो कुछ है, जब हम उससे बाहर मांगते हैं, तो हम अपनी बरकतों को ब्लॉक कर देते हैं। फिर जब आप चीजें मांगते हैं तो चीजें नहीं मिलती, क्योंकि वो आपको ऑलरेडी मिल गई हैं। ये तो ऐसे ही है ना, ये कुछ पानी मेरे सामने पड़ा है तो मैं दुआ में बैठ जाऊं, खुदावंद मुझे पानी दे, तू जानता नहीं मुझे सख्त प्यास लगी है, तू जानता है तूने मुझे इस तरह बनाया है कि मैं पानी के बगैर जिंदा नहीं रह सकता, अगर मुझे पानी नहीं मिलेगा तो मेरी जो है वो हलाकत हो सकती है, मैं जो हूं बड़ी परेशानी में। तो मैं जितनी मर्जी दुआ करता जाऊं, मैं जैसे मर्जी लफ्ज बोलता जाऊं, जितने मर्जी टेक्निकल लफ्ज बोलूं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि पानी तो मेरे सामने पड़ा है। आई जस्ट हैव टू रिसीव इट एंड नथिंग एल्स। सो आपने और मैंने, जब आप और मैं, हम सारे जो यहाँ पे बैठे हैं और होपफुली जो ऑनलाइन सुन रहे हैं या बाद में सुनेंगे, आप ऑनलाइन जो है चीजें आप आजकल जो है वो उसको ऑर्डर करते हैं। जब आपने ऑनलाइन ऑर्डर कर दिया तो दैट्स इट। कभी आप दुआ में बैठे हैं कि भाई जी दुआ में बैठे हैं, मैंने ऑनलाइन बड़ी महंगी चीजें मंगाई हुई हैं और वो तकरीबन उस पर 2 लाख रुपए लग गए हैं, और आप रोजे दुआ में हमारे साथ बैठे हैं क्योंकि वो मिल नहीं रही हैं, पहुंच नहीं रही हैं। भी कब कराई हैं? आज ही करवाई हैं, और वो उसको तो 2-3 हफ्ते लग सकते हैं। अपनी पर्ची दिखाई, इसमें तो लिखा हुआ है कि जो ऑर्डर है वो पहुंचने में 2-3 हफ्ते लग सकते हैं। सो मेरा और आपका ईमानदारों का यही हाल है। सब कुछ अवेलेबल है, हम दुआ करें हमें दे हमें दे हमें दे, वो कह रहे मांगना छोड़ो, शुक्र करना शुरू करो कि तूने ये सब कुछ तो ऑलरेडी दे दिया है, इस सब कुछ पे ऑलरेडी तुम्हारा हक है। तो फिर मांगना है बादशाही को, मेरी जिंदगी में तेरी बादशाही आए, मेरी जिंदगी से तेरा जलाल जाहिर हो, ये शहर तेरे लिए जीत लिया जाए, यहां पे तेरे नाम को इज्जत मिल जाए, जलाल मिल जाए। खुदा हम किसी को नीचे ऊपर करने की बात नहीं है, खुद ऊपर नीचे होने के, हम तेरे नाम को इज्जत देना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि तू इस जगह पे, इस मुल्क में, इस शहर में, इस इलाके में ओ लोग तौबा करें, निजात पाए, रूहें तेरे पास आ जाए, ये शहर सरफराजी पा जाए आपकी दुआओं से। इसके लिए मुझे और आपको बुलाया गया है। आइए अपनी आंखों को बंद कीजिए, अपने सरों को झुकाइए, चंद लम्हों के लिए अपने कदमों पे खड़े हो, हम दुआ करेंगे। मैं और आप अपना आप खुदावंद के हाथों में देंगे, अपने आप को खुदावंद के हुजूर में रखिए। अगर मैंने और आपने, हमें कुछ चाहिए, हम मांग रहे हैं तो मांगना बंद करें, शुक्रगुजारी शुरू करें। हर एक आंख मेहरबानी से बंद हो जाए और खुदा के हुजूर में आप अपनी जुबानों को खोल के शुक्रगुजारी करना शुरू करें। जो कुछ आपको चाहिए कहीं आए, खुदा तूने ऑलरेडी दे दिया है। जो कुछ आपको चाहिए कहें, खुदा तू हमारा बाप है, तू तो हमारे मांगने से पहले ही जानता है, इस सिचुएशन के बनने से पहले तुझे पता था। जैसे हम बच्चों के लिए पहले से जानते हैं, अब सर्दी आ रही है, इसके पास कोट नहीं है, इसके पास गर्म जैकेट नहीं है, जूते नहीं है, मफरल नहीं है, हम पहले से उसका अरेंज करके रखते हैं, पैसे अरेंज करके रखते हैं, चीजें अरेंज करके। हमारा बाप हमसे बढ़ के हमें प्यार करता है। जो आपको चाहिए उसने ऑलरेडी ग्रांट कर दिया है, दे दिया है, अवेलेबल है, मुहैया है, सिर्फ उसे रिसीव कीजिए, ईमान से उसे ले लीजिए। कहे खुदावंद तूने दे दिया है, मैं तेरा शुक्र करती हूँ, मैं तेरी सिताइश करती हूँ। तू कैसा भला है, तू कैसा कद्दूस है, तू कैसा मेहरबान है, तू कैसा जलाली है। तेरे नाम में, तेरे कलाम में कैसी कुदरत पाई जाती है। तेरा शुक्र हो कि तू हमारा खुदा है, तेरा शुक्र हो कि तू हमारा बाप है जो हमारे मांगने से पहले जानता है। Glory Jesus.
थैंक यू होली स्पिरिट, तेरा शुक्र और तेरी सिताइश हो। खुदा मुझे और मेरे नजीजों को बरकत दे, हमें कलाम के प्रिंसिपल्स को जो तेरे कलाम में है, वो बुनियादें जो तूने रखी हैं, जो बड़ी क्लैरिटी से मौजूद है, हमें उनको उसी तरह समझने की तौफीक बख्श, ताकि हम तेरे कलाम के मुताबिक तेरे हुजूर में आगे बढ़ सकें। छू के बरकत दे यीशु के नाम में, आमीन आमीन। थैंक यू वेरी मच। तशरीफ रखिएगा।